RG, next one says seeking guidance and sharing an update. Dear Junaid sir, I hope this email finds you well. My name is ABC and I'm a 23-year-old student from Pakistan. I'm currently pursuing my master's degree in Europe through a fully funded uh, scholarship coming from a small town in Sindh. This opportunity has been a dream come true for me and my family. A few months ago, I sent you an email about feeling lonely and lost during my first month here. Later, I realized I had sent it to your business email by mistake. वैसे by the way बहुत लोग गलती करते हैं. Of course, my business email is not business@junaid akram, it's contact@junaid akram. तो लोग समझते हैं कि बस contact है तो कर लेते हैं, मगर वो that is strictly for business. So please be advised. इस पे कर लिया करें. So no, nothing to be sorry about. It's fine. At the start, I found it hard to fit in. My European classmates are mature, more experienced, and very confident. I'm the youngest among my classmates. While I do talk to them and we work on assignments together, their humor and topics often don't match mine. I learn a lot from them, but I can't seem to open up fully, and it feels like I'm pretending to fit in. Eventually, I joined another class group for a trip where I interacted more with two Pakistani classmates. I hadn't spoken too much before, mainly because my senior had advised me to avoid Desi groups. We clicked instantly and formed a small friend circle of 6 to 7 people, including other Asian students. Initially, it was a relief. These friends shared my sense of humor, and for a while, I felt like myself again. However, things started to change. The Pakistani classmates began visiting my place for dinner almost every day. At first, I enjoyed their company, but they started requesting specific time-consuming dishes like biryani and kadai. वही वाली बात आ गई पिछली episode वाली. It became challenging to manage financially and with my time schedule, but I was still okay with it because at least I wasn't feeling lonely and was enjoying the company. On top of that, I have a hard time saying no to people. Some friends back home also called and asked for money, and I can't say no. I don't want to damage these friendships over money, but I sent half of my stipend as savings for a work visa later. अरे भाई क्या कर रही हो? So I try not to use it. Balancing expenses has become increasingly difficult. I even shared freelance projects with my Pakistani classmates to help them financially. We agreed to split the payment 50-50, but later they took the entire amount and mocked me when I asked for my share. They often joked about my age, calling me a kid and questioning how I managed to get this scholarship, especially since they are double of my age and have more experience, which I admire. I have learned a lot from them, but it was hurtful because I genuinely wanted to help. They even called me stingy, and it made me question myself. I got the scholarship based on my talent, but their words planted self doubt in me. Eventually, I decided to distance myself. It wasn't easy because I initially enjoyed their company, but I realized the situation was draining me. Now, even though I'm still part of the group, I feel disconnected and lonely again. Back in Pakistan, I was confident, lively, and full of energy. I loved organizing events, making people laugh, and being actively involved in everything. Here, I feel like I've lost that version of myself. I'm quite unsure and don't recognize who I'm becoming. I'm sorry for the long email, but I truly admire your work and I believe you could offer valuable guidance. How can I rebuild my confidence, set boundaries without guilt, and find my way back to the person I used to be? Thank you so much for taking time to read this. I look forward to any advice you can share. Also, if you have any plans to visit Europe, I would love to meet you, especially if you're planning that grand weekend meetup you mentioned in your previous video. Best regards. I forgot where you're from. यू नेवर मेंशनड किस शहर से हैं आप, सो आई एम नॉट रियली श्योर वेयर यू फ्रॉम. आपने यूरोप ही लिखा है हर जगह, सो लाइक यूरोप इज ह्यूज. एनीवे, so reading this email, I met my dearest friend in Dusseldorf and another friend of hers. और मुझे लग रहा है कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ बिकॉज लिटरली 4 दिन पहले यही बात है कि घर रोज आना पाकिस्तानी उनका, उसका भी यही था. जो फ्रेंड की फ्रेंड थी उसका भी यही इशू था. शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली और वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रही थी. फिर वो पाकिस्तानी दोस्त बने, रोज़ घर आ जाए. रोज़ यार, रोज़ आप पाकिस्तान. अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करें, पाकिस्तान में बहुत कुछ करने को होता है, दिन नहीं ख़त्म होता. यूरोप वगैरह में दिन यूँ ख़त्म हो जाता है. वजह क्योंकि पाकिस्तान में खाना नहीं पकाना पड़ता, कपड़े नहीं धोने होते, कपड़े नहीं इस्त्री करने होते, चीज़ें हो रही होती है. सो यू हैव टू मच टाइम ऑन योर हैंड्स. चूँकि आप यहाँ सब कुछ खुद कर रहे होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए हैंग आउट का भी टाइम नहीं होता. सो वो भी मेरी दोस्त ये बता रही थी कि रोज़ घर आना और रोज़ डिटेल्ड डिशेस बनवाना और फिर उसको मैनिपुलेट करना कि वो फिर बेचारी पैसे भी नहीं मांग सकती थी. तो अब ये देखें, उसका भी यही सवाल. उसमें से एक लड़की की जॉब प्राइमार्क में हो गई थी. अच्छा, प्राइमार्क जॉब्स ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल जैसे सीज़न आ रहा है ना, क्रिसमस सीज़न है, रश होगा, तो वो डेली बेसिस पे हायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के. भाई सिर्फ
तय करना है। जर्मन आती है नहीं आती, खली वाली बस कपड़े तय करके यहाँ लगाने, राइट। एक लड़का था जो उसी तरह डे जॉब पे आया हुआ था, एंड दिस गर्ल हु आई मेट, शी वाज वर्किंग फॉर प्राइमा। तो वो सारा टाइम तुम्हारी यहाँ जॉब कैसे लगी, अबे ये लिंक्डइन पे गई, मिल गई, तू भी ढूंढ ले। हमें मसला ही यही है कि तेरे पास कहां से आया, तो भाई उसने हाथ पैर मारे तो आ गया। यही चीज अब आपके पास ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो ये जो पीछे से डंगर बैठे हुए हैं जो डंकी लगा के जैसे तैसे भी आए हुए हैं, तुम्हें कैसे मिली। अबे भाई ये मुझे खुद इस सवाल से इतनी चिढ़ है, जब भी यहाँ पे मुझे अक्सर देसी मिलते हैं या किसी और जगह, आप यहाँ क्या कर, तू यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तो ये ना बस ये कह रहा ये यहाँ कैसे आ गया, हम तो कुंडी लगा के आ गए थे पाकिस्तान में, बाकी पीछे से लोग कैसे आ रहे हैं। अरे ये कोई बात है करने वाली, थर्ड क्लास मेंटालिटी। मैं इसीलिए कहता हूँ, और उन्होंने भी सबक हासिल कर लिया। जो पुरानी है पुराना रह रही है उसने तो कट ऑफ कर लिया, उसके सारे गोरे दोस्त हैं, वो अपनी लोनलीनेस का सोल्यूशन जो उन्होंने किया मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा। ऑन दी अदर हैंड माय डियरेस्ट फ्रेंड, उसको भी साल 1.5 साल ही हुआ है, अभी शी इज स्टिल विद द देसी फ्रेंड्स, बिकॉज देखो इंसान ट्राइबल होता है, रह दे के उसका भी मुंह अंग्रेजी बोल बोल के थक जाता है। मेरे बड़े अच्छे जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं बिलियनियर, जो कि बिलियनियर होके मुझे इतना टाइम दे देते हैं, वो इसलिए देते हैं, और अमंग अदर थिंग्स ऑफ कोर्स ही लव्स मी एंड एवरीथिंग। वो कहते हैं यार मुंह दुख जाता है अंग्रेजी बोल बोल के, यार तेरे साथ बैठ के ना फिर अपनी पुराने मोहल्ले वाली लैंग्वेज अंदर से निकलती है, तो वो भड़ास निकालनी होती है। तो इंसान इनहेरेंटली ट्राइबल होता है, वो ढूंढता ही अपने जैसे है। वो आप जितने गोरे दोस्त बना लो, एसेंशियली फिर आप बोलते हो यार मैं लाइक अपना आप नहीं आ रहा मेरे अंदर से, सो दैट इज वेरी नेचुरल। दूसरी चीज ये ढसें आपको लग गई हैं। अव्वल तो भाई जो पाकिस्तान से माइग्रेट होता है ना, पाकिस्तान वाला नंबर आप कर दो सेकेंडरी, और प्राइमरी नंबर अपना यूरोप अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया जहां गए हो उसको प्राइमरी कर लो, और उनको ये बता दो अरे यार वो तो मैं चेक ही नहीं करता, वो मैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, और वो नंबर कभी देना नहीं उनको, ठीक है, वरना वो फिर उस पर आ जाएंगे। बोलो ये नंबर है ना, उस पर मेरे वो कॉलेज की चीज़ें, तो मैं वो प्रोफेशनली चीज़ें उस पर हैं, ये व्हाट्सएप घर के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, वो बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस का फ़ोन है वो यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे करके उसमें व्हाट्सएप नहीं है। 10,000 बहाने, उनसे दूर रहें आप, क्योंकि उनको पता है जी फलानी स्कॉलरशिप पे गई है तो साल का इतना पैसा मिल रहा है, राइट। अब इट डजंट हेल्प, मेरी अपनी एक वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया था एरास्मस वाले कितने पैसे देते हैं या फलाने वाले कितने पैसे देते हैं, वो भी लोग देख के अच्छा इसको तो बैठे बैठे लाखों रुपए मिल रहे हैं, चल भाई एक काम कर, मेरा इजी लोड तो अब यही बन गया, तो वो गिल्ट में डालते हैं। तो भाई पहली फुर्सत में जो आपके नोटों को देख रहा है ना बैठ के, देख रहा है कि एक बंदी अकेली है, परदेश में है, गैर मुल्क में है, गैर ज़बान है, अपना खाना नहीं है, अपना कल्चर नहीं है, स्ट्रगल कर रही होगी, सर्दी है, मौसम है, दिक्कत है, अकेली है, लेकिन नहीं पहले तुम पैसे भेज दो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ऐसे लोगों को फारिग कराया। और ये जो घर पे आ रहे हैं ना, देखे भाई गोरे इस मामले में बिल्कुल सही होते हैं, वो भाई हाथ उठा लेते हैं सीधा सीधा डच, मैंने ये खाया है तो मेरा बिल तो यही है, उनमें नहीं होता ये रख रखाव। और ये अकल मुझे कब आई, जब मैं एक बार आई वॉज परफॉर्मिंग एट वन ऑफ बार, टी कॉम में एक होता था स्टैंड अप में, वहाँ करता था, तो मैं वो बार स्टूल पे सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, तो एक गोरा है, उसने पोलाइटली पूछा एक ले लूँ, मैंने ले लो। उसने मुझे जितना थैंक यू किया, मैंने क्या बस देनी रह गई है, बाकी सब तो कर ही दिया उसने। इतना क्यों, तो मेरे दूसरे दोस्त ने बताया भाई इनके मुल्कों में वो पूछते भी नहीं है, तो अगर यहाँ कोई दे रहा है तो उनके लिए बड़ी अनोखी बात होती है, अच्छा यार सिगरेट शेयर कर रहा है, तो भाई आप बिल्कुल हाथ उठा ले, बोलो बिरयानी खानी है? बिल्कुल, ले आओ सौदा, सौदा ले आओ, मेरे पास तो नहीं है और मैं नहीं जा रही। वो बोलेंगे अच्छा तुम नीचे से हो ना, तुम्हारा स्टोर है, बोलो मेरा क्या स्टोर, सबका स्टोर है, जाओ लेकर आओ, लेकर आओ अभी बनाती हूँ। एक दिन बोलें अगले दिन नहीं आएंगे। जब तक आप बिठा के खिलाती रहेगी, वो पागल थोड़ी है कि घर जाके खुद ही अपनी जैसी तैसी पीली दाल बनाए और वो भी अच्छे जायके की ना हो, या फिर 5 यूरो का डोनर खाना पड़े। जब आप मुफ्ता वो जो है ना, आपने दस्तरखान लगाया हुआ है, सेठ खिला रहा है, तो वो आएंगे रोज़ आपके पास, और रोज़ आएंगे। भाई स्टूडेंट के पास तो टाइम ही नहीं होता बाहर मुल्क में, वो पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले, पीछे देख ले, या इनको खिला दे हड हरामों को। तो ये आप जितना इनको फ्री कराएंगी, पाकिस्तानी तबीयत ही यही है, उंगली पकड़ाओ बाजू खींच लेते हैं। तो आप पहले दिन से ही ठीक है, इंसान अकेला होता है तो चलो कर लेता है, ये मामलात आप सिर्फ संडे या सैटरडे तक के रखें, संडे के भी ना रखें। संडे तो बिल्कुल आराम का दिन होता है, संडे को तो लॉन्ड्री भी नहीं करना अलाउ होती, जर्मनी वगैरह जैसे मुल्कों में पड़ोसी शिकायत कर देते हैं, वैक्यूम शैक्यूम सब अलाउ नहीं होता। तो सैटरडे को एक बार बुलाएं, इस शर्त पे कि अगले सैटरडे फिर बेटा आपने बुलाना है, फिर तीसरे यासिर भाई ने बुलाना है, फिर फाहद भाई ने बुलाना है, फिर सरमद भाई ने बुलाना है। तो ऐसे रोटेशन चलेगी। ये कोई घर जो है ना सैलानी वेलफेयर नहीं लिखा हुआ है, मैं कोई छिपा नहीं हूँ, हरा कुर्ता पहन के घूम रही हूँ कि तुम लोग को रोज़ाना मटन चॉप्स खिलाती रहूँ।
दफा हो यहाँ से, सौदा डलवाओ, बोलो सौदा डलवाओ, रोज आके खा लो, आप महीने का राशन यहाँ पे डाल दो, और मैं जब रोज बनाती हूँ तो मैं थोड़ा पानी डाल के 4 लोगों की दाल कर लूंगी, तो डब्बे में डाल के घर ले जाना, यहीं बैठ के 10 मिनट में खा के निकल जाना, मैं बनाती हूँ। ऐसा भागेंगे, गधे के सर से सींग भागते हैं। कभी इनकी जेबों में हाथों डलवाएं। देखिए कुछ लोगों की जेब में सांप होते हैं, हाथ डालेंगे तो काटेगा, तो इनके सांपों को मारना है आपने। तो जितना आप फ्री कराएंगी, ये फ्री तबीयत के लोग हैं, इनमें रख रखाव और वो तो चीज़ है ही नहीं, एहसास, एम्पैथी छू के नहीं गुजरी। और ये लोग जो जेलस हैं, जो सीनियर्स हैं आपके, कि तुम्हें जॉब कैसे मिली, तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे मिली, बोलो भाई मैं नेक औरत हूँ, मेरी माँ की दुआएं, मेरे माँ बाप नेक थे, उनकी दुआएं लग गई। तो आपके होंगे फिर दूसरे टाइप के, या आप ही होंगे बदबख्त कि जिसको नहीं मिली। अल्लाह की रहमत है, हर किसी पे थोड़ी नाजिल होती। ऐसे बोल के टाल दिया करें। बस दूसरे की जेब पे नज़र, दूसरे की डिग्री पे नज़र, दूसरे की स्कॉलरशिप पे नज़र, यही वजह है कि ये डंगर 40-40 साल के हो जाते हैं, ये कहीं किसी काबिल नहीं होते। ये वही सिक्योरिटी की जॉब, वही ऊबर ईट्स कर रहे होते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो सारा फोकस अपने अपने एक्सेलेंस पे लगाना था, उन्होंने दूसरी की जेब पे लगा दिया कि इसकी जेब में क्या है, ये कितना कमा रही है, ये कौन सी गाड़ी है, पीछे क्या चल रहा है, इसने अपना घर ले लिया, मॉर्गेज कैसे मिल गई, फलाना ढिमकाना, ये अपग्रेड कैसे करिए, इनका सारा टाइम इसी में गुजरता है। ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं। ठीक है, आप थोड़ा अनफिट फील करती हैं या इनएडिक्वेट फील करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी कम नहीं हैं, आप पढ़ लिख के स्कॉलरशिप लेकर आई हैं। ये गोरे जो है, अगर आपके क्लासमेट्स हैं, यूरोपियंस जो भी हैं, तो चलो ये तो इनका तो लोकल है, इनको तो मिलना ही था। आप जहाँ से उठ के आई हैं, तो आप ज़्यादा उनसे एक्सीलेंट है। बस वो एक लैंग्वेज बैरियर है, और वो ठीक है, ह्यूमर हर जगह का अलग होता है, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो आप इनएडिक्वेट नहीं है। आप उनसे उनकी ज़बान में बात कर रही हैं, वो आपसे सिंधी बलोची में नहीं बात कर रहा, आप उनसे उनकी ज़बान में बात करें, तो आप तो ज़्यादा एट पार हैं उनसे। सो ये छोड़ें, और वक्त के साथ साथ इंसान कैचअप कर लेता है, उनके ह्यूमर वगैरह को, हर चीज़ हो जाती है। दूसरा, इतना लोनली फील कर रही है ना, तो अपनी लोनलीनेस पे फिर इन्वेस्ट करें, जिम शिम ज्वाइन करें, फिटनेस फ्रीक बन जाएं, एक्टिविटी करें, सैटरडे को हाइकिंग करें, और बिल्कुल अपनी बॉडी को टेम्पल बना दें कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है, और मैं अकेली हूँ, और मैं ही अपने साथ हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। और बिल्कुल इसको क्रीपन ही ना होने दें, इस चीज़ को, इस बैड फीलिंग को, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मैन। अगर आप जहाँ से आप आई हैं, ऑब्वियसली आपने रिक्वेस्ट की है मेंशन ना करो, और वहाँ से आप उठ के यहाँ आई हैं, अगर यहाँ भी इन डंगरों में आपने टाइम ज़ाया करिए तो क्या ही फ़ायदा। तो इससे बेहतर है वहीं चली जाएं, घर की रोटी तो मिलेगी। अगर इधर इन्हीं के साथ टाइम ज़ाया करना था, अगर एक्सपोजर बढ़ाना ही नहीं था और इन्हीं में ही रहना था, तो उधर ही रह लेती। तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अपने होराइजन को एक्सपैंड कीजिए, और डिफरेंट कल्चर्स के साथ एंगेज हों, डिफरेंट कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करें कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो ज़िंदगी को किस तरह लेके चलते हैं, वो ज़िंदगी को किस तरह ट्रीट करते हैं, वो अपने आप को किस तरह ट्रीट करते हैं, अपने आसपास वालों को कितना ट्रीट करते हैं, वो दूसरे के मज़हब में नहीं घुसते होंगे, वो दूसरे की प्राइवेसी, दूसरे को स्पेस देते होंगे, ये तो घर में ही घुस जाते हैं। आपके वो वाले दोस्त कितनी बार घर आए बिरयानी खाने, ये भी बता दें आप। ठीक है ना, ये फ्री होने की जो मेंटालिटी है ना, ये इनसे दूर रहें। और एक बार आप जेबों में हाथ डलवा लें, ये अगले दिन आपको नज़र नहीं आएंगे। आप बोलें भाई देखें ठीक है ना, यही है, ये हिसाब किताब बैठता है, ये सारे आप कर लें, मैं भी बना देती हूँ। और ये रोज़ ज़रूरी नहीं कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बैठ के आप बनाने हैं, वो पढ़ने गई है, इन हड़हरामों को सालन खिलाने गई हैं। आपने खुद ही, इंसान अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करता है भाई। तो जितने लोग सुन रहे हैं इस तरह की, जो बोट में बैठे हुए हैं, जो इस तरह के उससे गुजर रहे हैं, प्लीज़, यू आर ओनली, ओनली यू कैन चेंज योर ओन एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों को ख्याल देखिए, ठीक है, दोस्ती यारी होती है, कभी कभी आपका भी दिल करता है आप उनको स्पॉइल करें, मगर हर चीज़ टू वे होती है, दोनों तरफ से होती है, तो ही दोस्ती होती है, वरना एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो ये सरासर एक्सप्लॉइटेशन है कि जहाँ सिर्फ आप ही हांडियाँ चढ़ा रही हैं, अगला तो बस, अगले ने बस, क्या बोलूँ अब मैं। तो आप जो है बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट ना हो। और जितने लोग सुन रहे हैं, इसमें लड़के भी होंगे, आई एम श्योर, जो हु लैक स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, जो कि शायद शर्मा शर्मी में या डर में, यार मेरे दोस्त ना चले जाएं, मैं मुल्क से दूर हूँ, यही मेरा सब कुछ है। नहीं भाई, आपके पास बहुत कुछ है, थोड़ा निकलो तो सही, थोड़ा बाहर तो निकलो, इनसे बढ़ के बहुत कुछ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कहाँ कैसे लोगों में टाइम ज़ाया करो। ठीक है, बुरे वक्त में स्टेटिस्टिकली अपना ही काम आता है, लेकिन फिर अपना जितना चूना लगाते हैं ना, तो नेट में आप लॉस में ही होते हो। लॉस नहीं करना, उधर लॉस करने थोड़ी गए हो यार, माँ बाप से दूर गए हो उधर, क्या अपना नुकसान कराने के लिए गए हो, या अपनी मेंटल हेल्थ फक करने गए हो? नहीं ना यार, अपनी अपनी एक्सीलेंस के लिए गए हो, अपने आप अपना करियर को बढ़ावा देने के लिए गए हो,
अपनी तालीम अच्छी करने के लिए गए हो, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए गए हो, रिसर्च करने के लिए गए हो, तो ये चीज़ें करो, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस ना करो, अपने साथ रहना सीखो, कोई मसला नहीं, लोनलीनेस आती है यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या करें भाई, ऐसा ही है, पैसा है तो ऐसा ही है, ठीक है। जिसने मिलना होगा ज़िंदगी में मिल जाएगा, हम सफ़र भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे, फिर एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन योर ओन। आप जितने भरे घर में हो, होते आप अकेले ही हो, तो उसको एब्जॉर्ब करना सीखें, उसको एम्ब्रेस करना सीखें, और मैन अप या वुमन अप, जो भी बोलना चाहें, सेवन अप, जो भी करना चाहें। सो बाउंड्रीज करें, गिल्ट विल्ट जाए खल्ली वल्ली, जब अगले को गिल्ट नहीं हो रहा आपको एक्सप्लॉइट करने में, तो आपको गिल्ट क्यों हो अपने आप को बचाने के लिए भाई। अगले को तो 2 मिनट का नहीं हो रहा। कभी किसी ने झूठे मुंह लाके 2 थैले रखे आपके किचन में कि यार रमशा फरीशा जो भी आपका नाम है, ठीक है, कि यार हम रोज आते हैं, तुम्हारा वी अंडरस्टैंड तुम नई स्टूडेंट हो, हम यहाँ हड़ हराम 15 साल से बैठे हुए हैं, मगर आज भी तुम्हारे हाथ की रोटी खा रहे हैं और तुम्हारी जेब से खा रहे हैं, तो चलो यार आज ये हम थोड़ा सा ले आए, चावल ले आए, थोड़ा घी ले आए, ऑयल ले आए, शुगर ले आए, या चाय मैं बना लेता हूँ, या चलो मीठा मैं ले आता हूँ, या कोल्ड ड्रिंक मैं ले, कभी बोला किसी ने झूठे मुंह। अब बाप की नौकर है उनकी, अब वहाँ से इनकी नौकरियाँ करने आई हैं, इनकी हांडियाँ पकाने आई हैं, साबिर पकवान नाम है आपका। अजीब बात है भाई। कभी कभी चलता है लेकिन टू वे चलता है, आज इधर है तो कल उधर भी खाना लगेगा, वरना नहीं लगेगा, वरना जाओ अपना अपना खाओ भाई, मैं तो अपना पका लेती हूँ, तुम अपना खुद ही देखो कुछ जो भी करना है। खैर भाई, अब हर चीज़ की बैटरी गिर रही है, तो इस सवाल को यही एंड करते हैं। प्लीज़ बाउंड्रीज बनाना सीखें, ये आप ही ने बनानी है, कोई और आपको बना के नहीं देगा। और ये हमारी जो आवाम है ना, इसको ये बहुत फ्री होने वाली आवाम है। इसने तो कनाडा को ही चूस लिया, कनाडा ने बोला हाँ वेलफेयर मिलता है, पूरा ही चूस लिया, ब्रैडफोर्ड को बैंकरप्ट कर दिया, आप क्या चीज़ है। ये तो ऐसी कौम है भाई, इससे बच के रहे, और बस दूर दूर तक सलाम दुआ रखें, बल्कि कोशिश करें वो भी ना रखें, काम से काम रखें। चलो भाई, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।